Yes, my dear students, good morning. Today we will discuss chapter 8 and our topic is relationship between planning and controlling. It means what is the relation between planning and controlling? You know, planning and controlling both are the functions of management. Planning is the first function of management and controlling is the fifth function of management. अब हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ फंक्शन. कहते देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. बोथ आर इंटरलिंक, बोथ आर इंटरडिपेंड टू ईच अदर, क्योंकि विदाउट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वी कांट अचीव अवर गोल. सो सम पॉइंट्स आर गिवन फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन. तो रिलेशनशिप का जो फर्स्ट पॉइंट आपके लिए है वो आता है नेचर एंड कंसेप्ट. Nature and concept. It means planning means when we decide in advance what to do, when to do, how to do and by whom to do is called planning. And when we explain the concept that planning is a bridge between where we are standing today and where we want to reach. कहते प्लानिंग ये एक ब्रिज का काम करती है जो ये बताती है कि आज हम कहाँ खड़े हैं और हमें फ्यूचर में कहाँ जाना है. उन दोनों जो सिचुएशंस को हम बता रहे हैं उसके बीच में एक ब्रिज बनाने का काम कौन करते हैं? प्लानिंग करता है. प्लानिंग जो फंक्शन होता है वो हम फ्यूचर में जब एडवांस में डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ये काम कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ठीक है, और किसके द्वारा किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग. ठीक है, तो नेचर एंड कंसेप्ट में यू डिफाइन ओनली द मीनिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. तो प्लानिंग में when we decide in advance what to do, when to do, how to do and by whom to do is called planning. And controlling, in controlling function we do the comparison of actual performance with the standards and find out some deviations. For removing of all these deviations we should take the correct action so that our actual performance close to the desired performance. तो कंट्रोलिंग में हम ऑलवेज अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिजायर्ड परफॉर्मेंस के क्लोज लाने के लिए एफर्ट्स करते हैं ताकि हमारा गोल इजीली से अचीव हो जाए. दैट इज द नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. सो स्टूडेंट्स, इन नेचर एंड कंसेप्ट में यू डिफाइन ओनली द मीनिंग. इट मीन्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का आप लोगों को मीनिंग डिफाइन करना है. क्यों? क्योंकि कंसेप्ट का मतलब भी यही होता है कि मेन किस चीज पर बेस्ड होती है. जैसे प्लानिंग के कंसेप्ट में एक लाइन गिवन होती है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच. तो प्लानिंग इज आल्सो प्रिपेयरिंग ब्रिज बिटवीन बोथ. ठीक है, बोथ सिचुएशन के बीच में एक ब्रिज का काम करती है प्लानिंग. तो उसकी कंसेप्ट की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है. बाकी आप सिंपल मीनिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. सेकेंड आता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंड एंड इंटरलिंक. यानी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटरडिपेंड टू ईच अदर. इट मीन्स planning depend on controlling and controlling depend on planning. But how? First of all, one function को आप लो, it means planning. Planning depend on controlling. कहता planning is a paper work. आप एक्सप्लेन करोगे कैसे डिपेंड करती है. ओके, विदाउट एक्सप्लेनेशन इट मीन्स आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो कहते प्लानिंग डिपेंड ऑन कंट्रोलिंग. Then the question is arise, how the planning depend on controlling. कहता है in planning function we decide in advance what to do, when to do, how to do and by whom to do is called planning. And planning is only a paperwork. Planning is only a paperwork. The plan is converted into real form with the help of controlling. Because without monitoring your plan is not converted into real form. Because in controlling function we check all employees also perform the work according to the plan or not. If we do not perform the controlling function, if we do not check the controlling
function, yeah, if we do not check the performance of the employees, then the employees are not perform the work according to the plan. If the employees are not perform according to the plan, then your plan is not success. So the success of planning is totally depend on controlling. So we can say that planning function depend on controlling. Okay students? तो प्लान में आपने एडवांस में डिसाइड किया क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये पेपर पे आपने एडवांस में एक फॉर्मेट में डिसाइड कर दिया, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से अगर इस चीज को क्लियर करूं कि मैंने एडवांस में डिसाइड किया है कि भी मेरा 1000 यूनिट क्या करना है, मुझे प्रोड्यूस करनी है 1 मंथ में। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने ले लिया। मैंने डिसाइड कर दिया भाई ये बंदा ये काम करेगा, ए ये करेगा, बी ये करेगा, सी डी सब चीज डिसाइड कर दी और उसके अकॉर्डिंग हो भी रहा है। अब डिसाइड तो कर दिया, लेकिन हम ये तो चेक करेंगे क्या इन बंदों को जो जो काम दिया गया है ये उसी काम के अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बेटा आप लोग चेक किस फंक्शन से करोगे, कंट्रोलिंग से। बिकॉज इन कंट्रोलिंग फंक्शन में मैं चेक करूंगी ऑल एम्प्लॉइज यानी ए बी सी डी इज आल्सो परफॉर्म द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट, ओके। और अगर मैं ये चेकिंग नहीं करती हूं तो मे भी ये थोड़े दिन तो काम सही करे, उसके बाद ये काम करना बंद कर दे, और काम करना बंद करेंगे तो योर टारगेट इज नॉट अचीव ऑन एक्यूरेट टाइम। सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज ओनली ए पेपर वर्क, planning is only a paper work. The plan is converted into real form with the help of controlling, because in controlling we check all employees perform the work according to the plan or not. So the success of planning is totally depend on controlling. Clear? Second point, controlling function depend on planning. अब हम इस controlling को explain करना है, how the controlling function depend on planning. कहता है बेटा in controlling function we compare the actual performance with standards and find out some deviation. कहता है कंट्रोलिंग फंक्शन में आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो और डेविएशन फाइंड आउट करते हो। इन कंट्रोलिंग फंक्शन में वी कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स एंड फाइंड आउट सम डेविएशन। For removing of all these deviation, we should take the correct action so that all these deviations are not come arise again in our actual performance. But students think in your own mind कि जो actual performance का standard performance से जो आप comparison कर रहे हो, ठीक है, तो standards are determinate with the help of planning. The standards are determinate with the help of planning. If the standards are not determinate, then you can't do the comparison. You can't identify your actual performance is less or more. So the controlling function is totally depend on planning. क्योंकि जो controlling के लिए standard determinate हुए, वो किसकी help से determinate हो रहे हैं? Planning की help से, ठीक है? So controlling function is totally depend on planning. ठीक है, आप इसमें एक सिंपल सी बात आपके माइंड में सेट कर देती हूँ कि कंट्रोलिंग फंक्शन में आप एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन करते हो, ठीक है, आप डेविएशन आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, और उस डेविएशन को रिमूव करने के लिए एक्शन ले रहे हो, करेक्ट एक्शन ले रहे हो कि फ्यूचर में वो डेविएशन अराइज ना हो, ठीक है, और आपका टारगेट अचीव हो जाए। लेकिन स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड आप लोगों ने डिटर्मिनेट किया, कहता वो स्टैंडर्ड आप लोगों ने किसकी हेल्प से डिटर्मिनेट किया है? प्लानिंग की हेल्प से। द स्टैंडर्ड्स आर डिटर्मिनेट विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। If the standard are not determinate, then you can't do the comparison. You can't identify your actual performance is less or more. So the success of controlling is totally depend on planning. So we can say that the both function are interdependent to each other. जैसे फॉर एग्जाम्पल है, मैंने एक्चुअल में 800 यूनिट क्या की, प्रोड्यूस की, बस इतना है। अब मुझे नहीं पता मेरी 800 जो यूनिट है वो सफिशिएंट है या नहीं है, बिकॉज द स्टैंडर्ड्स आर नॉट डिटर्मिनेट। ओके, मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस को तो कंट्रोलिंग में मेजर कर लिया कि एक्चुअल में मेरा 800 यूनिट क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता मेरी 800 यूनिट सफिशिएंट है या नहीं है। फिर मैंने क्या किया कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो 800 सफिशिएंट है या नहीं है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी।
और ये स्टैंडर्ड किसकी हेल्प से डिटर्मिनेट हुआ? प्लानिंग की हेल्प से डिटर्मिनेट हुआ। तो इसका मतलब कंट्रोलिंग में जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करते हो देन यू नीड स्टैंडर्ड्स एंड द स्टैंडर्ड्स आर डिटर्मिनेट विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। सो द कंट्रोलिंग फंक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन प्लानिंग। सेकेंड, मैंने ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेट कर दिया 1000 यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी है 1 मंथ, लेकिन ये स्टैंडर्ड आपका तब तक रियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक रियल सिचुएशन एक फ्लोर पर काम तब तक एक्चुअल में नहीं होगा, तब तक आप इसकी मॉनिटरिंग नहीं करोगे, चेकिंग नहीं करोगे कि सभी एम्प्लॉय प्रॉपर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो प्लानिंग की सक्सेस भी किस पे डिपेंड हो गई? कंट्रोलिंग पे। इसलिए प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ फंक्शन आर इंटरडिपेंड टू ईच अदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, सॉरी सेकंड। उसके बाद हमारा थर्ड आता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है, फर्स्ट आप एक को लो, जैसे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, दोनों क्या होती है? बैकवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग। इसके बाद हम फॉरवर्ड लुकिंग को एक्सप्लेन करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे देखना और फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे देखना। कि द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग को। हम प्लानिंग को बैकवर्ड, ठीक है, एज वेल एज फॉरवर्ड दोनों सिचुएशन में एक्सप्लेन करेंगे। कि द प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज वी मेक द प्लान फॉर फ्यूचर। So we can say that planning is forward looking। कहते हैं प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है क्योंकि प्लान फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। प्लान की हेल्प से आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं, फ्यूचर का एस्टिमेशन लगाते हैं। सो प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बट कंट्रोलिंग इज प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है, बिकॉज द प्लान आर मेड फॉर द पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे बनाया जाता है। सो प्लानिंग क्या होती है? बैकवर्ड लुकिंग भी होती है। तो फर्स्ट हमने फंक्शन लिया, प्लानिंग फॉरवर्ड भी होती है, प्लानिंग बैकवर्ड। प्लानिंग फॉरवर्ड होती है बिकॉज द प्लान इज मेड फॉर फ्यूचर। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग हम फ्यूचर का एस्टिमेशन लगाते हैं, हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं। सो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज द प्लान इज मेड विद द हेल्प ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे प्लान बनाया जाता है। कभी एक बात बताओ, अगर मैं कोई भी प्लान फ्यूचर के बारे में बना रही हूँ तो मैं पास्ट में जो प्रॉब्लम्स आई है, पास्ट की जो इंफॉर्मेशन होती है, उन सब के बिहाफ पर मैं प्लान बनाती हूँ। ठीक है, आप अपनी लाइफ में भी देख लेना कि भी पिछले साल मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी तो इस साल ये वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप अपनी पास्ट इंफॉर्मेशंस को देखकर क्या बनाते हो? प्लान बनाते हो। जब पास्ट इंफॉर्मेशंस को देखकर प्लान बनाया जाएगा तो प्लानिंग क्या होती है? बैकवर्ड लुकिंग। क्लियर हो गया? प्लानिंग बैकवर्ड भी होती है एंड फॉरवर्ड भी। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे मान लो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना बजट बना रहा है तो देखेगा ना लास्ट ईयर मेरा क्या टारगेट था, मैंने कितना अचीव किया, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, उसी को देखकर तो हम नेक्स्ट ईयर का क्या बनाते हैं? प्लान बनाते हैं। तब लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को देखकर फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हो तो बेटा वो क्या होता है? बैकवर्ड। और फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हो तो वो फॉरवर्ड। Then the next, controlling. Controlling function भी backward looking as well as forward दोनों होता है। Controlling कहता है controlling function is the backward looking। Backward का मतलब पीछे देखता है। Because in controlling function we do the comparison of actual performance with the standards, but the standards are determined in past. So we can say that कंट्रोलिंग फंक्शन इज द बैकवर्ड लुकिंग। कहता कंट्रोलिंग फंक्शन में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करते हैं एंड आइडेंटिफाई सम डेविएशंस, बट यू नो द स्टैंडर्ड्स आर डिटर्मिनेट इन पास्ट। प्रेजेंट में आपने स्टैंडर्ड डिटर्मिनेट नहीं किए, प्रेजेंट में तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कर रहे हो, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस लेस या मोर है, लेकिन स्टैंडर्ड आपने कब डिटर्मिनेट किए थे? पास्ट में। सो कंट्रोलिंग क्या होती है? बैकवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज इन कंट्रोलिंग फंक्शन वी डू द कंपेरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स
and identify some deviations. For removing of all these deviations, we should take the correct action in future. So we can say that controlling is forward looking. कहता है बेटा देखो स्टैंडर्ड तो आपने पास्ट में डिटर्मिनेट करे तो वो क्या हो गया, बैकवर्ड लुकिंग हो गया. प्रेजेंट में मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअल परफॉर्मेंस की मेजरमेंट कर रही हूँ, आइडेंटिफाई कर रही हूँ एक्चुअल परफॉर्मेंस लेस या मोर. ऑब्वियस बात है डेविएशन आता है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, लेकिन उस डेविएशन को रिमूव करने का जो मैं एक्शन लेती हूँ वो मैं फ्यूचर में लेती हूँ, ताकि वो डेविएशन फ्यूचर में दोबारा से अराइज ना हो. ठीक है, या फिर वो प्रॉब्लम दोबारा से अराइज ना हो कभी भी जिससे मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम हो. तो वो जो डेविएशन को रिमूव करने का आप एक्शन ले रहे हो वो आप फ्यूचर में लेते हो, इसलिए कंट्रोलिंग को फॉरवर्ड लुकिंग कहा जाता है. ठीक है, तो राइट स्टूडेंट्स, प्लानिंग भी बैकवर्ड होती है एज वेल एज फॉरवर्ड, कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड, दोनों चीजें होती है. और बड़े अच्छे से इन दोनों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है कि कैसे बैकवर्ड कैसे फॉरवर्ड होती है, कैसे आपकी जो कंट्रोलिंग है वो बैकवर्ड है एज वेल एज फॉरवर्ड होती है. उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आपका आता है, प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव वेयर कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव. ये आपका फोर्थ आता है रिलेशनशिप में. ये तो प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव है क्योंकि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है. पर्सपेक्टिव का मतलब मेंटल एक्सरसाइज है, बिकॉज व्हेन वी मेक द प्लान देन वी आल्सो डू द डीप थिंकिंग इन अवर ओन माइंड. It is not a physical activity, it is not a physical function, it is a mental function. So we can say that planning is perspective. कहते हैं प्लानिंग एक पर्सपेक्टिव है क्योंकि ये मेंटल थिंकिंग से रिलेटेड है. When we make the plan, then we also do the deep thinking in our own mind. It is not a physical activity. ठीक है, so we also can say that planning is an intellectual process. इसलिए प्लानिंग को हम इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि ये मेंटल थिंकिंग से रिगार्डिंग. वेयर द कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव. इवैल्यूएटिव का मतलब होता है इवैल्यूएशन करते हैं कंट्रोलिंग में. किसका इवैल्यूएशन, एक्चुअल परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करते हैं. किससे, स्टैंडर्ड से. कहता है कंट्रोलिंग एक इवैल्यूएटिव फंक्शन है बिकॉज इन कंट्रोलिंग फंक्शन वी चेक our actual performance is less or more. We check the actual performance, we evaluate the actual performance and also find out some deviations. So we can say that controlling is evaluative क्योंकि यहाँ पर हम actual performance को check कर रहे हैं कि हमारी actual performance standard के according आ रही है या नहीं आ रही. अगर आ रही है, एक्चुअल में सही काम हो रहा है तो वेल एंड गुड चलता रहता है, लेकिन अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस सही नहीं हो रही है तो फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है और उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए क्या लेते हो, करेक्ट एक्शन लेते हो. तो कंट्रोलिंग को हम इवैल्यूएटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है. प्लानिंग पर्सपेक्टिव होती है क्योंकि प्लान बनाने के लिए माइंड से डीप थिंकिंग करना पड़ता है. ठीक है, और इसमें मेंटल एक्सरसाइज भी कहते हैं, इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी कहते हैं. सो प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द रिलेशन बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कंट्रोलिंग प्रोसेस. व्हेन वी परफॉर्म द कंट्रोलिंग फंक्शन देन व्हाट स्टेप्स वी शुड फॉलो. कंट्रोलिंग फंक्शन में हम 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं. जब भी आप कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म करोगे तो कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. और बेटा जहां प्रोसेस आ जाती है तो हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ते हैं, फॉलो करना पड़ता है. कोई भी स्टेप्स इधर से उधर नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस में ही आप एक्सप्लेन करोगे बिकॉज ऑल स्टेप्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में आपका फर्स्ट पॉइंट आता है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स. इसमें हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स. इन कंट्रोलिंग फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेट द स्टैंडर्ड्स इन अवर बिजनेस. स्टैंडर्ड्स मीन्स टारगेट. स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है, टारगेट. कि कंट्रोलिंग फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटर्मिनेट स्टैंडर्ड्स and you know the standards are determined with the help of planning, so we can say that the controlling is depend on planning. ठीक है, रिलेशनशिप में मैंने एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पर आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन करोगे. कहता है इन कंट्रोलिंग फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटर्मिनेट द स्टैंडर्ड्स, इट मीन्स टारगेट्स,
एंड टारगेट वो एंड रिजल्ट्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए हम वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. योर टारगेट या योर स्टैंडर्ड्स इज नॉट सो हाई और नॉट सो लो. बहुत ज्यादा हाई भी और बहुत ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए. कहते हैं when we determine the standards, then the standards are determined after considering the resources of our organization. Because your standard is not so high, not so low. आपका स्टैंडर्ड ना तो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा लो. अपनी रिसोर्सेज को कंसीडर करके ही आप स्टैंडर्ड डिटर्मिनेट करें. आप जब भी स्टैंडर्ड डिटर्मिनेट करते हो तो आप स्मार्ट वर्ड को भी फॉलो कर सकते हो. आपका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यानी आपका जो टारगेट है वो स्पेसिफिक होना चाहिए. आपका टारगेट है वो मेजरेबल होना चाहिए. इसका मतलब उसको हम मनी में मेजर कर सके. क्वांटिटिव स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होने चाहिए. अचीवेबल होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो. और आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए. इट मीन्स आपके स्टैंडर्ड में टाइम जरूर फिक्स होना चाहिए कि कितने टाइम में आप ये स्टैंडर्ड अचीव कर लेते हैं. अगर आपने स्टैंडर्ड्स बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए डिसाइड कर दिया तो उसको स्मॉल पीरियड्स में डिवाइड कर लो, क्योंकि स्मॉल पीरियड्स वाले स्टैंडर्ड्स को हम इजीली से मेजर कर लेते हैं कि भाई हमने अचीव कर लिया नहीं कर लिया. हम जो डायवेशन आते हैं, जो कमी भी आ जाती है, तो उसको इजीली से टाइमली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और करेक्ट एक्शन भी ले लेते हैं ताकि वो प्रॉब्लम बार बार अराइज ना हो. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मैंने स्टैंडर्ड डिटर्मिनेट किया कि मुझे सेल इंक्रीज करनी है. जैसे सेल इंक्रीज करनी है रुपीज कितने से 12 लाख, कितने दिन में 1 ईयर. ये मैंने एग्जांपल लिया कि मुझे सेल्स इंक्रीज करनी है 12 लाख रुपए से एक साल में. यानी इस साल मेरी 12 लाख रुपए सेल ज्यादा होनी चाहिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन. पूरे एक साल का मैंने स्टैंडर्ड डिटर्मिनेट करा. बेटा एक बात बताओ, आप इस स्टैंडर्ड को क्या एक साल बाद चेक करोगे कि भाई आप लोगों ने 12 लाख रुपए की सेल करी या नहीं की, और एक साल बाद अगर चेक भी करोगे तो उस चेक करने का क्या फायदा, क्योंकि जो प्रॉब्लम होनी थी वो तो हो चुकी है, जो लॉस होना था वो तो हो चुका है. तो आप इस स्टैंडर्ड को स्मॉल पीरियड्स में डिवाइड कर लो. यानी 1 मंथ में मुझे कितनी सेल करनी है 1 लाख. 1 मंथ में मुझे कितनी सेल करनी है 1 लाख. इट मीन्स आप हर मंथ चेक करोगे कि आपको 1 लाख रुपीज की सेल हो रही है या नहीं हो रही. अगर किसी भी रीजन से 1 लाख की सेल नहीं हो पाई है तो आप आइडेंटिफाई करोगे व्हाट्स प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय इन आवर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट वी कांट ऑब्टेन आवर गोल. या हमने सेल इतनी क्यों नहीं कर पाई, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या रीजंस थे, वो चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर लोगे. टाइमली एक्शन ले लोगे ताकि यही प्रॉब्लम नेक्स्ट मंथ में अराइज ना हो. तो आपका टारगेट जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड का नहीं होना चाहिए. अगर आपने लॉन्ग पीरियड का भी टारगेट आपने डिसाइड कर लिया है तो उसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लो ताकि इजीली से हम मेजर कर सके कि एक्चुअल में कम है या ज़्यादा. क्लियर. फिर आप एक एग्जाम्पल दोगे. जब भी हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि मुझे 10,000 यूनिट क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है. एग्जाम्पल जरूर लेना, कोई भी एग्जाम्पल ले सकता है 1 मंथ में. ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि मैंने अपना टारगेट सेट किया है कि 10,000 यूनिट मुझे प्रोड्यूस करनी है 1 मंथ में. ओके, ये मेरा टारगेट. कोई भी स्टैंडर्ड आप सेट करते हो, सेल करनी है, प्रॉफिट इतना इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन की कॉस्ट रिड्यूस करनी है, ठीक है, या XYZ आप स्टैंडर्ड यहाँ पे अपना ले सकते हो कोई भी. मैंने एग्जांपल 10,000 यूनिट का लिया है कि 1 मंथ में मुझे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है. तो फर्स्ट कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्लियर है कि सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि आपने टारगेट सेट कर लिया और टारगेट ही वो एंड रिजल्ट्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए हम वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. जब भी टारगेट सेट करते हो आप स्मार्ट वर्ड को फॉलो कर सकते हो. आपका टारगेट आपके रिसोर्सेज को कंसीडर करके डिसाइड होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो. ठीक है, अगर लॉन्ग पीरियड के लिए स्टैंडर्ड डिटर्मिनेट किया हुआ है तो स्मॉल इंटरवल्स में उसको डिवाइड कर लो ताकि इजीली से मेजर हो सके. एग्जाम्पल जरूर लोगे. द नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. कहता है इन सेकेंड पॉइंट में वी मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस,
कहता व्हेन वी मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज देन वी कंसीडर 2 पॉइंट्स इन आवर माइंड, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। जब भी किसी एम्प्लॉय की ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम चेक करते हैं तो हम 2 पॉइंट अपने माइंड में कंसीडर करते हैं, एक क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस उस एम्प्लॉय की और एक उस एम्प्लॉय की क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस। ठीक है, तो बेटा सेकंड पॉइंट में कहता है कि टारगेट तो सेट कर लिया, लेकिन सेकंड में हम एम्प्लॉयज की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि एक्चुअल में एम्प्लॉय ने क्या परफॉर्म किया, क्या एक्चुअल में इतनी यूनिट प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई, एक्चुअल में आपकी क्या परफॉर्मेंस है। कहते हैं व्हेन वी मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय देन वी कंसीडर 2 पॉइंट्स इन अवर माइंड। ठीक है, कि क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस एज वेल एज क्वालिटेटिव, यानी एक एम्प्लॉयज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करते समय उसकी दोनों परफॉर्मेंस को कंसीडर किया जाएगा, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। बेटा क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस वो परफॉर्मेंस होती है जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो और क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस वो परफॉर्मेंस होती है जिसको मनी में मेजर नहीं किया जाता। बट जब आप ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करते हो देन क्वालिटेटिव को भी कंसीडर जरूर करोगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपने अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस की है, आपने अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस की है दैट इज द क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस, क्योंकि 100 यूनिट को तो आप क्या कर सकते हो, मनी में मेजर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने ऑनेस्टी से काम करा, डेडिकेशन से काम करा। ठीक है, आपका अदर एम्प्लॉइज के साथ रिलेशन कैसा है, बेटा वो सारी की सारी कैसी होती है, क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस होती है। क्या किसी की ईमानदारी को आप मनी में मेजर कर सकते हो, क्या किसी के डेडिकेशन से करने वाले काम को उस मनी में मेजर कर सकते हो, अदर एम्प्लॉइज के साथ मेरे जो रिलेशंस होते हैं क्या उनको मनी में मेजर कर सकते हो, मेरा जो बिहेवियर होता है क्या उसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। बेटा इन क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस को भी आप कंसीडर करोगे जब आप उस एम्प्लॉय की ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करते हो। क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों को कंसीडर करके हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, एक टीचर आपकी क्लास में, आपको उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करना है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे, भाई वो टीचर का बहुत अच्छा कंटेंट होना चाहिए, उसको अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी सी कमांड होनी चाहिए, इसके साथ उस तो कमांड अच्छा सा आपको पढ़ा रहा है, आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ रहा है, ये तो उसकी क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस है। बट उसका बिहेवियर कैसा आप लोगों के साथ, उसकी लैंग्वेज कैसी वो यूज कर रहा है क्लास में, तो उसका बिहेवियर भी उसकी क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस में आता है। आप कहते हो वैसे तो बहुत अच्छा टीचर है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन योर बिहेवियर इज नॉट सो गुड, या उसका व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, उसका जो स्टूडेंट्स के साथ ट्रीट करने का जो मेथड है या जो वे वो यूज करता है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो वो उसकी क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस में आता है। लेकिन जब आप उस एम्प्लॉइज की, उस टीचर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करोगे तो आप उसकी सारी बातों को कंसिडर करोगे, तब जाके उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक होती है। और ये सेम पॉइंट ही मैंने मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस में आप लोगों को बताया है। एक और बात, अगर मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करना है तो क्या चीज मैं देखूंगी, भाई कितनी कितनी नई टेक्निक्स अपडेट हो रही है, क्या कुछ नया डेवलप कर रहा है, कौन सा नया मेथड उसने अपडेट करा, कौन सा नया मेथड उसने डिस्कवर करा, तो ये R&D डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस चेक हो जाती है। अगर मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करना है तो मैं ये देखूंगी भाई सोलवेंसी और लिक्विडिटी रेशियो क्या है। सोलवेंसी का मतलब डेब्ट्स कितनी जल्दी क्लियर हो रहे हैं, अगर बाहर से कोई पैसा ले रखा है तो कितनी जल्दी उसकी पेमेंट हो रही है। और अगर मान लो मैं ये देखती हूँ कि लिक्विडिटी रेशियो में मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है, क्योंकि आपके पास ना तो कैश बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, ना आपके पास कैश बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। लो कैश होगा तो फाइनेंस को फाइनेंस को पेमेंट करने की प्रॉब्लम आएगी, एक्सपेंस पेमेंट करने की प्रॉब्लम आएगी। बट अगर हाई कैश है आपके पास तो बेटा वेस्टेज ऑफ मनी, ज़्यादा कैश है तो भी आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है और उसका कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को हम चेक करते हैं उसके सोलवेंसी एंड उसके लिक्विडिटी रेशियो से। तो ऐसे ही आप किसी भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को क्या करोगे, चेक करो। लेकिन चेक करते समय मैं बार बार बता रही हूँ, दोनों चीज़ों पॉइंट्स को आप कंसीडर करोगे, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। अब मैंने एक्चुअल में मेजर करा तो मैंने देखा भाई यहाँ एम्प्लॉय ने 9000 यूनिट का क्या करा, प्रोडक्शन कर लिया। एक्चुअल में ये परफॉर्मेंस आई सभी एम्प्लॉय की चेक करने के बाद।
अब तीसरा आता है कंपैरिजन आएगा। तीसरा आपका जो हेडिंग आएगा वो क्या आएगा, कंपैरिजन। तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है, कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या करते हैं, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि अवर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस और मोर। जैसे फॉर एग्जांपल है, हमारा स्टैंडर्ड था मुझे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है 1 मंथ में, जबकि एक्चुअल में मैंने 9,000 यूनिट प्रोड्यूस की, तो बेटा डेविएशन कितने का आ गया, 1,000 यूनिट मेरी क्या हुई, कम प्रोड्यूस हुई। तो ये मेरे कंपैरिजन कर लिया, कंपेयर करा मैंने एक्चुअल का स्टैंडर्ड से। मे बी मैंने एक्चुअल में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगी तो जीरो डेविएशन भी आ सकता है, कम यूनिट प्रोड्यूस की तो नेगेटिव डेविएशन, और हो सकता है मैं ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर देती तो पॉजिटिव डेविएशन भी आ जाता है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन थर्ड पॉइंट में ओनली और ओनली मैंने क्या किया, कंपेयर किया एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कि भाई मेरा काम एक्चुअल में कम था ज्यादा था, वो तो कंपैरिजन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वैसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। एग्जांपल से अच्छे से बताना है कि टारगेट इतना था, एक्चुअल में ये करा और ये डेविएशन हमारा आया। तो ये था हमारा कंट्रोलिंग का जो आपका थर्ड स्टेप, कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंट्रोलिंग प्रोसेस का हमारा फोर्थ पॉइंट आता है एनालाइजिंग डेविएशन। इट मीन्स कंपैरिजन करने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किया, उसके बाद हमने क्या किया, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजरमेंट किया, तीसरे पॉइंट पे मैंने कंपेयर किया एक्चुअल को स्टैंडर्ड से, और फोर्थ पॉइंट में आता है एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन में मैंने रीजन आइडेंटिफाई किया कि मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में अगर डिफरेंस आ रहा है, डेविएशन आ रहा है, बेटे डेविएशन का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो उसको डेविएशन बोला जाता है उस डिफरेंस को। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कम आती है तो नेगेटिव डेविएशन, लेकिन अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ज्यादा आती है तो पॉजिटिव डेविएशन, कैसा भी हो सकता है। तो एनालाइजिंग डेविएशन में वी आइडेंटिफाई रीजन्स कि किस रीजन से हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम आई है, ठीक है। और देयर आर द वेरियस रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है कि मशीन बार बार ब्रेक डाउन हो रही थी, या हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं थी, या रॉ मटेरियल इनसफिशिएंट था, या वर्कर्स प्रॉपर वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, या बिजनेस में प्लान पॉलिसी प्रॉपर नहीं थी जिसकी वजह से हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम आई। वेरियस रीजन है, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन आप आइडेंटिफाई करोगे इन वेरियस में से कौन सा रीजन जो है वो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और कहते हैं जब भी हम रीजन आइडेंटिफाई करते हैं तो उस रीजन में हम कंट्रोलिंग की 2 प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करते हैं, इसको कंट्रोलिंग की प्रिंसिपल्स कहा जाता है। ये कंट्रोलिंग के 2 प्रिंसिपल्स है, और कंट्रोलिंग की प्रिंसिपल्स में फर्स्ट आता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और सेकंड प्रिंसिपल आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसको ऐसे भी लिखते हैं, याद रखना। बहुत बार ऐसा होता है, ये 3 नंबर में सेपरेट पूछा जाता है, ठीक है। सेपरेट आता है, कोई एक स्टेटमेंट दे देते हैं और उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे इसको सेपरेट भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट एनालाइजिंग डेविएशन में आ गया क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में जब भी हम रीजन आइडेंटिफाई करते हैं देन वी कंसीडरिंग द 2 प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। 2 प्रिंसिपल्स में फर्स्ट आता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक है। ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोसेस में, और बहुत बार ये दोनों के दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं ये सेपरेट पूछे जाते हैं। हर बच्चे को बड़े अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, केस भी सेपरेट आ जाता है दोनों का। कहता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कहता है जब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है, यानी जो डेविएशन आता है, इफ द डेविएशन आर कम्स अराइज इन आवर की एरियाज देन वी इन्फॉर्म टॉप लेवल इमीडिएटली, बट इफ द डेविएशन आर नॉट अराइज इन आवर की रिजल्ट एरिया देन वी शुड इग्नोर, ठीक है। कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल प्रिंसिपल कहता है अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है, डेविएशन आता है, इफ द डेविएशन अगर हमारे की रिजल्ट एरियाज में आता है तो तुरंत टॉप लेवल को इंटीमेट करना चाहिए। बट अगर डेविएशन हमारे की रिजल्ट एरिया में नहीं आता है
तो मुझे क्या करना चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर की रिजल्ट एरिया में आपका डिफरेंस आता है तो इट मीन्स वो इम्पोर्टेंट एरिया होता है। कई बार बच्चे पूछते हैं की रिजल्ट एरिया क्या होता है। बेटा की रिजल्ट एरिया वो इम्पोर्टेंट एरिया होता है जो मेरे बिजनेस के रिजल्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। उस इम्पोर्टेंट एरिया को ही की रिजल्ट एरिया कहा जाता है। ठीक है, अगर उस इम्पोर्टेंट एरिया में डिफरेंस आता है तो तुरंत टॉप लेवल को नोटिस में डाल दो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट 2 रुपए से इंक्रीज हो जाती है और पोस्टल एक्सपेंस 20 रुपए से इंक्रीज हो रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का खर्चा तो 20 रुपए से बढ़ गया है, लेकिन प्रोडक्शन की कॉस्ट ओनली 2 रुपीज से इंक्रीज हुई है, तो सोचो कौन सा जो प्रॉब्लम है वो की रिजल्ट एरिया में आ रही है। प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो 2 रुपए से बढ़ी है, लेकिन फिर भी वो मेरे की रिजल्ट एरिया में आती है, क्योंकि प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज तो प्राइस इंक्रीज तो प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्टली। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट का बढ़ना की रिजल्ट एरिया में आ रहा है। पोस्ट ऑफिस का खर्चा, कितनी बार आप लोगों को पोस्ट ऑफिस का काम पड़ता है, बहुत कम। आजकल तो डिजिटल इंडिया हो गया तो वैसे पोस्ट ऑफिस का काम कम हो गया। तो सोचो पोस्ट ऑफिस का खर्चा अगर 50 रुपए से भी बढ़ जाएगा तो भी उसका कोई ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट बिजनेस पे नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे की रिजल्ट एरिया में नहीं आ रहा। इसलिए अगर कोई भी डिफरेंस हमारे की एरिया में आता है, वो एरिया जो मेरे बिजनेस को रिजल्ट के सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो तुरंत हमें टॉप लेवल को इंटीमेट करना चाहिए। और अगर ऐसे छोटे मोटे डिफरेंस आते हैं जो कि एरिया में नहीं आ रहे तो उन सबको हमें इग्नोर करना चाहिए। बेटा उसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। सेकंड आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में एक लाइन गिवन होती है, ठीक है, इफ यू ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। एक स्टेटमेंट आती है इफ यू ट्राई, बहुत बार आती है, if you tries to control everything if you tries to control everything, ठीक है, may end up controlling nothing। और ये स्टेटमेंट में इफ ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, ठीक है, अगर आप सब कुछ, इफ यू ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, अगर आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये बात सच भी है। और जब भी ये स्टेटमेंट आपको जहां भी मिले, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करके आना है इसमें, क्योंकि अगर आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। आपका सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, तो वो हमेशा आपको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में लिख के आना है। फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल है क्या? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल कहता है कि जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन करने से पहले ही आप एक टॉलरेंस लिमिट सेट करो। आप एक टॉलरेंस लिमिट क्या करोगे? सेट करोगे। अगर आपका डिफरेंस उस टॉलरेंस लिमिट में आता है, ठीक है, जैसे मैंने टॉलरेंस लिमिट सेट कर ली है कि भाई 50 यूनिट। टॉलरेंस लिमिट का मतलब भाई इतना डायमेंशन तो मैं सिर्फ टॉलरेट करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इतना डायमेंशन आता है तो। लेकिन अगर उससे ज्यादा डायमेंशन आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। टॉलरेंस लिमिट का मतलब टॉलरेट करने की लिमिट आपने एडवांस में सेट कर ली। कहता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेट द टॉलरेंस लिमिट। ठीक है, और टॉलरेंस लिमिट सेट करने के बाद आप एक्चुअल का स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करो, ठीक है, और डेविएशन आइडेंटिफाई करो। इफ द डेविएशन आर कम्स इन आवर टॉलरेंस लिमिट then we should tolerate that deviation, but if the deviation cross the tolerance limit then we should intimate the top level so that the top level is also take the correct action to remove of this deviation. This is called the management by exception. कहता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है भाई आप क्या कर लो, पहले टॉलरेंस लिमिट सेट कर लो। कर लिया मैंने 50 यूनिट का कर लिया, फिर एक्चुअल का स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करा तो आप लोगों ने देखा था डिफरेंस 1000 यूनिट का आया, ठीक है, या मैंने 100 का टॉलरेंस लिमिट सेट कर रखी है 100 यूनिट की, 1000 यूनिट का डिफरेंस आ गया। टारगेट करा था मैंने 10 का, एक्चुअल में हुआ 9, तो 1000 यूनिट का डिफरेंस आ गया। अब मैं देखती हूँ क्या ये 1000 का यूनिट का डिफरेंस इस टॉलरेंस लिमिट में आ रहा है।
नहीं, क्योंकि 100 यूनिट तक का ही मैं टॉलरेट कर सकती हूँ। अगर 100 से 101 भी आ जाता है डिफरेंस तो भी मुझे टॉप लेवल को इंटीमेट करना चाहिए। अगर मान लो उससे ज़्यादा आता है तो मुझे टॉप लेवल को इंटीमेट करना ही करना है। लेकिन अगर मेरा डिफरेंस 100 यूनिट के अंडर आ जाता है, 100 आ गया, 90 आ गया और कुछ भी आ गया, तो टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि वो छोटा मोटा डिफरेंस होता है, स्मॉल डायरेक्शंस होते हैं जिनके अवेलेबल होने पर भी मेरे एक्चुअल परफॉर्मेंस में कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। तो ऐसे डेविएशंस को हमें इग्नोर ही करना चाहिए, उसके लिए हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर छोटे छोटे डेविएशन के लिए भी एक्शन लोगे तो आपका टाइम और एफर्ट्स ही वेस्ट हो रहा है, जबकि रिजल्ट में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आती है। उसको बोला जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ओके, तो इनको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया कि भाई मैंने इतना टॉलरेट करने का है तो उतना आ जाता है, टॉलरेट करोगे, अदरवाइज आप इसे ज्यादा आ गया तो टॉप लेवल को इंटीमेट करोगे। These are two principles of controlling। और जब भी आप रीजन आइडेंटिफाई करोगे, एनालाइजिंग डेविएशन का मतलब यही होता है रीजन्स आइडेंटिफाई करना कि किस रीजन से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ताकि उन रीजन को रिमूव करने का एक्शन लो। लेकिन रीजन्स के साथ साथ दो प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करेंगे, इनको बड़े अच्छे से विद एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से रीडिंग करनी है। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव मेजर, जैसे हमने रीजन आइडेंटिफाई कर लिया तो इस सिक्स पॉइंट में क्या लोगे, फिफ्थ आएगा, फिफ्थ पॉइंट में आप क्या लोगे, करेक्ट एक्शन लोगे। ठीक है, करेक्ट एक्शन का मतलब उस रीजन को रिमूव करने के लिए आप करेक्ट एक्शन लेते हो। इट मीन्स इफ एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेल होने की वजह से, बार बार पावर फेलियर की प्रॉब्लम आ रही थी, तो इलेक्ट्रिसिटी को ठीक कराओगे। अगर आपकी मशीन बार बार ब्रेक डाउन हो रही थी तो मशीन की रिपेयर करा दोगे। अगर आपका रॉ मटेरियल इनसफिशिएंट था तो रॉ मटेरियल प्रॉपर अवेलेबल करा दोगे। वर्कर्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आ रही थी बार बार, तो वर्कर्स को ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देके उनको प्रॉपर वर्क परफॉर्म कराओगे, उनकी मॉनिटरिंग कराओगे, ताकि एक्चुअल परफॉर्मेंस डिजायर्ड के क्लोज आ जाए। और अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ रहा है बिजनेस के प्लान, पॉलिसी और स्ट्रेटेजी की वजह से, ठीक है, तो आप अपनी प्लान एंड पॉलिसी को मॉडिफाई करोगे, चेंज कर दोगे। यानी जिस रीजन से भी प्रॉब्लम आ रही है उस रीजन को रिमूव करने के लिए क्या लोगे, एक्शन लोगे। इसी को बोला जाता है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। और कोई भी एक्शन हो सकता है, जैसे मैंने आपको वेरियस एग्जांपल्स दिए हैं, कोई भी एक्शन आप ले सकते हो। ओके, उसके बाद जब हमारा करेक्ट एक्शन ले लिया गया, ठीक है, तो फिर हम फीडबैक इन कंट्रोलिंग, कहता आपकी कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो करेक्ट एक्शन लेने के बाद ही एंड नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता है। आप एक फीडबैक रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे। फीडबैक रिपोर्ट में आप मेंशन करोगे कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में क्या डेविएशन आया और वो डेविएशन किस रीजन से आया और उस रीजन को रिमूव करने के लिए आपने क्या एक्शन लिया। ये ऑल इंफॉर्मेशन आप अपनी कंट्रोलिंग जो फीडबैक रिपोर्ट बनाओगे उस रिपोर्ट में मेंशन करोगे। और जब नेक्स्ट ईयर के लिए आप स्टैंडर्ड सेट करते हो तो उस फीडबैक रिपोर्ट के सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में कंसीडर करके आप नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करोगे, टारगेट सेट करोगे, ताकि वो वाली प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर अराइज ना हो। उसको बोला जाता है फीडबैक इन कंट्रोल, कि कंट्रोलिंग प्रोसेस से जो फीडबैक आया, जो पॉइंट्स आए, जो रिजल्ट्स आए, उन सबको हमने मेंशन करा। भाई किस रीजन से हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या हमने एक्शन लिया, सबकी रिपोर्ट बना दी, फीडबैक रिपोर्ट बनाई। और नेक्स्ट ईयर के लिए जैसे हम टारगेट सेट कर रहे हैं तो फिर बेटा उन टारगेट्स को हमने, या वो जब भी टारगेट सेट कर रहे हैं तो फीडबैक रिपोर्ट को अपने माइंड में कंसीडर करके हमने नेक्स्ट ईयर के टारगेट सेट करे, ताकि वो प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर में अराइज ना हो। उसको फीडबैक इन कंट्रोलिंग। फीडबैक इन कंट्रोलिंग के बाद हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। पहले हम सिर्फ स्टूडेंट्स को 5 ही कराते थे, लेकिन अब 6 स्टेप हो गए। तो ये थी कंट्रोलिंग की प्रोसेस। उसके बाद कई बार पूछ लेते बच्चे बार बार कि डेविएशन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द डेविएशन। कहते हैं डेविएशन का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का जो डिफरेंस होता है उसी को डेविएशन कहा जाता है। ये डेविएशन 2 टाइप का होता है, एक नेगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव। नेगेटिव डेविएशन तब आता है जब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम हो, यानी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस माइनस एक्चुअल परफॉर्मेंस।
तो नेगेटिव डेविएशन आएगा। यानी स्टैंडर्ड तो था 1000, लेकिन एक्चुअल में कितना करा आपने, 900 यूनिट ही करा, कम आपने। एक्चुअल परफॉर्मेंस जब कम होती है तो नेगेटिव डेविएशन आ गया आपका कितने का, 100 का। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन तब आता है जब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा हो स्टैंडर्ड से। टारगेट तो 1000 का था, लेकिन मैंने तो 1100 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, तो 100 यूनिट का पॉजिटिव डेविएशन आएगा। कई बार बच्चे पूछते हैं क्या पॉजिटिव डेविएशन के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए? यस, क्योंकि रीजन तो आइडेंटिफाई करोगे भाई, 100 यूनिट का आउटपुट ज़्यादा कैसे आ गया, किस रीजन से आया, उस रीजन को और इम्प्रूव करने का एफर्ट्स करोगे ताकि वो रीजन बार बार आए, वो चीज़ें बार बार हो, ताकि हमारा आउटपुट क्या हो, ज़्यादा हो। और नेगेटिव डेविएशन को रिमूव करने का एक्शन लोगे ताकि वो दोबारा से अराइज ही ना हो। लेकिन दोनों ही पॉइंट को जरूर कंसिडर करोगे, नेगेटिव डेविएशन एज वेल एज पॉजिटिव। तो ये था आपका डेविएशन, ठीक है। डेविएशन का मीनिंग ये 2 टाइप्स का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब मैंने आज आप लोगों को प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का रिलेशन और उसकी प्रोसेस, इसमें 3 ही क्वेश्चन आते हैं। जो कंट्रोलिंग चैप्टर है आपका छोटा सा चैप्टर है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, कई बार 4-1 में दे देते हैं। एक तो आपका कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस, एक रिलेशन और एक इसकी प्रोसेस, ओनली 3 क्वेश्चन है। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। बड़े अच्छे से वीडियो वॉच करनी है, उसके बाद बुक से प्रॉपर रीडिंग करनी है, ठीक है। कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस के कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।